بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ اپنا نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے الدرس السابع، 7واں سبق۔ الدرس السابع، درس نہیں پڑھیں گے اس کو، الدرس درس السابع۔ ایک بار بولیے آپ میرے ساتھ، الدرس السابع، 7واں سبق۔ درس سبق، لیسن، السابع، 7واں۔ حاضری کے بارے میں پچھلے سبق میں ہم پڑھے ہیں، اس کی اور پریکٹس کریں گے ہم، یہاں مزید مشق ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر تلکا کے بارے میں سیکھیں گے۔ تلکا، تلکا، تو یہ اس میں اشارہ کی مشق ہو رہی ہے۔ یہاں پر قریب کے لیے اس میں اشارہ مؤنث ہے، اور دور کے لیے اس میں اشارہ ہے اور وہ بھی مؤنث کے لیے ہے۔ حاذا اور ذالکا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حاذا قریب کے لیے ہے، مذکر کے لیے، اور ذالکا دور کے لیے ہے، مؤنث کے لیے۔ اس کو پڑھیے، من ہاذیہی، من ہاذیہی، یہ کون ہے؟ کوئی بھی قریب میں انسان ہو، کوئی چیز ہو، کوئی جگہ ہو، اگر مؤنث کے لیے ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم ہاذیہی کا استعمال کریں گے۔ من ہاذیہی، یہ کون ہے؟ ہاذیہی آمینتو، ہاذیہی آمینتو، کیا تو تن نہیں کہیں گے، کیونکہ عورتوں کے نام میں تنوین نہیں آتی۔ آمینتن نہیں ہوگا، آمینتو۔ منصرف اور غیر منصرف کی کا سبق، بحث انشاءاللہ ہم اسی کتاب کے آخری میں پڑھیں گے، تو وہ مزید ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ ابھی ہم اتنا یاد رکھیں کہ مؤنث نام میں تنوین نہیں آئے گی۔ ہاذیہی آمینتو، یہ آمینہ ہے۔ اسے پڑھیے، آگے پڑھیے، ومن تلکا، اس کو ومن نہ پڑھ دے کوئی، ومن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ومن، ومن تلکا، اور وہ کون ہے؟ ومن تلکا، اور وہ کون ہے؟ جواب کیا دے رہے ہیں؟ تلکا فاطمتو، تلکا فاطمتو، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ یہاں پر دیکھتے جائیے ٹرانسلیشن بھی، وہ فاطمہ ہے۔ اب آگے دیکھیے آپ، ہاذیہی طبیبۃن وتلک ممرضۃن۔ طبیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبیبہ، فیمیل ڈاکٹر۔ تلک ہاذیہی طبیبۃن، کیا مطلب اس کا؟ یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ وَتِلْكَ مُمَرِّضَةٌ، اور ممرضہ مطلب نرس، اور وہ نرس ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے۔ آگے چلیے، ہاذیہی
من الہندی و تلک من الیابانی، اس کی اگر تمرین ہم ترکیب کرنا چاہیں، حاضی اس میں اشارہ ہے للقریب مؤنث کے لیے ہے، للمؤنث اور پھر مبتدا ہے، اور طبیبۃ خبر ہے، مبتدا خبر ہے۔ مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث، مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد۔ اسی طرح سے اگر مبتدا کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث لا سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ مُمَرِّزَةٌ، اس کی بھی ترکیب ایسی ہوگی، هَذِهِ مِنَ الْهِنْدِ، ترجمہ کیجئے اس کا، هَذِهِ مِنَ الْهِنْدِ، یہ ہندوستان سے ہے، ہند سے ہے، یہ ہند سے ہے۔ وَتِلْكَ، اور وہ من الیابانی، جاپان سے ہے، جاپان سے ہے، جاپان کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، پڑھیے آگے، من ہاذا، کیا مطلب ہوگا من ہاذا؟ بہت آسان ہے، پہلے سے ہم پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے؟ من ہاذا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کون ہے؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہاذا حامد، یہ حامد ہے، یہ حامد ہے۔ کسی کی طرف اشارہ کر کے اگر آپ کو پوچھنا یہ کون ہے، ہم کیسے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو ہم پوچھیں گے من ہاذا، یہ کون ہے؟ جواب آئے گا ہاذا حامد، یہ حامد ہے۔ اور اگر کوئی شخص دور ہے تو کیسے پوچھیں گے؟ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ وا کا مطلب اور، من مطلب کون، ذالکہ کا مطلب وہ، اور وہ کون ہے؟ کیا جواب آ رہا ہے؟ پڑھیے اس کو، ذالک علی، وہ علی ہے، وہ علی ہے، ذالک علی، وہ علی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سبق آپ کو؟ کوئی پریشانی؟ آگے پڑھیے، اتلک دجاجۃ، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں، اتلک دجاجۃ، کیا مطلب اتلک دجاجۃ؟ دجاجۃ مرغی، کیا وہ مرغی ہے؟ کیا یہ مرغی ہے جو دکھ رہا ہے ہم کو؟ کیا یہ مرغی ہے؟ تو پوچھ رہے ہیں اتلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے؟ لا، لا مطلب نہیں، نہیں وہ بطخ ہے، نہیں وہ بطخ ہے، نہیں وہ بطخ ہے۔ تو ہم کو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا آئے، انسانوں کی طرف اشارہ کرنا آئے، جگہوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا آئے، بتانا آئے، اس کا استعمال اس سبق میں ہم اچھے سے سیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں، یہاں پر ہے ما تلکا، ما تلکا، ما تلکا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے کا جواب کیا دے رہے ہیں یہاں پر؟ تلکا بیضۃ، بیضۃ مطلب انڈا، وہ انڈا ہے۔ بیضہ مطلب بیضہ،
अंडा, बैजतुन अंडा, वो अंडा है। अब यहाँ पर देखिए दो गाड़ियों की तस्वीर बनी हुई है, पिक्चर है, और पूछ रहे हैं हादिही, बता रहे हैं हादिही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिल्का सय्यारतुल मुदीरी। हादिही क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, हाजा क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? क्योंकि सैयारा की तरफ इशारा कर रहे हैं, सैयारा की बात हो रही है। सैयारा क्या है, मुअन्नस है या मुजक्कर है? मुअन्नस है, बोलता है। तो यहां पर पूछ रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं ये मुदर्रिस की गाड़ी है, ये मुदर्रिस की गाड़ी, ये गाड़ी तर्जुमा नहीं करेंगे। क्या तर्जुमा करेंगे? ये मुदर्रिस की गाड़ी है, ये मुदर्रिस की गाड़ी है। और और वो मैनेजर की गाड़ी है। समझ में आ रहा है इसका माना हमको? ये मुदर्रिस की गाड़ी है और वो मैनेजर की गाड़ी है। मुदीर, मैनेजर, मोहतमिम, प्रिंसिपल, ये तमाम मानों में आता है। तो यहाँ पर इसकी तरफ इशारा करके बोले हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिल्का सय्यारतुल मुदीरी। अभी ग्रामर में हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ग्रामर की तफसीलात अभी हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इबारतों को पढ़ने में ज्यादा हमारी तवज्जो है, बोलचाल में कि हम किसको किस तरह से बोलेंगे। इसे पढ़िए, असाअतु अब्बासिन हादिही। पढ़िए, असाअतु अब्बासिन हादिही। क्या तर्जुमा करेंगे इसका? क्या ये क्या ये अब्बास की गाड़ी है? क्या ये अब्बास की गाड़ी है? अब्बास की गाड़ी गाड़ी नहीं है, घड़ी, घड़ी। आप गाड़ी किए तो मैंने भी गाड़ी कर दिया उसको, घड़ी। क्या ये अब्बास की घड़ी है? क्या ये अब्बास की घड़ी, सा मतलब घड़ी, क्या ये अब्बास की घड़ी है? क्या जवाब दे रहे हैं? ला हादिही साअतु हामिदिन। नहीं, ये हामिद की घड़ी है। नहीं, ये नहीं, ये घड़ी है। नहीं, ये हामिद की घड़ी है। फिर कह रहे तिल का साअतु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है, वो अब्बास की वो अब्बास की घड़ी है। अब आखिरी देखिए, आखिरी में चलिए, सबक मुकम्मल हो रहा है। ज़ालिका दीकुन व तिल्का दजाजतुन। ज़ालिका दीकुन, दीक यानी क्या होता है? मुर्गा, रूस्टर। वो
मुर्गा है, और वो मुर्गी है। और वो मुर्गी है, वो मुर्गा है और वो मुर्गी है। तमरीन इंशाअल्लाह हम करेंगे आगे। अभी करना चाहें तो अभी कर लें। तो कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ये आपके सामने नंबर है 9981025888। आप इस पर कांटेक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमरीन देखिए आगे की। इक़रा वक्तुब। मा माना इक़रा वक्तुब? इक़रा पढ़ो। सबसे पहली वही नाजिल हुई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा पढ़ो, वक्तुब व और उक्तुब लिखो, पढ़ो और लिखो। पढ़िए। इक़रा हाज़िही मदरसतुन व तिल्का जामिअतुन। हाज़िही मदरसतुन व तिल्का जामिअतुन। हम इसका तर्जुमा भी करते हुए चलेंगे साथ में। तर्जिम। हाज़िही मदरसतुन, हाज़िही मदरसतुन व तिल्का जामिअतुन। ये मदरसा है और वो यूनिवर्सिटी है। मैं तर्जुमा अलग से यहाँ पर साइड में लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिए। यहां देखेंगे जो भी तर्जुमा आ रहा है वो नीचे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं। हाज़िही मदरसतुन, ये मदरसा है और वो यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पर है ज़ालिका हिमारुन व तिल्का बकरतुन। हिमार यानी गधा, बकरा यानी गाय। ज़ालिका हिमारुन, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए आता है या मुअन्नस के लिए? मुज़क्कर। ज़ालिका लिल मुज़क्कर, वो गधा है और वो गाय है। ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। तिल का मुअन्नस के लिए, दूर के लिए, वाहिद के लिए है, और वो गाय है। आगे पढ़ेंगे। अज़ालिका मस्जिदुन, अज़ालिका मस्जिदुन। यहां तर्जुमा देखेंगे। अज़ालिका मस्जिदुन क्या मतलब होगा? क्या वो मस्जिद है? ला तिल्का मदरसतुन, नहीं वो मदरसा है, नहीं वो मदरसा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है।
हाजा जमलुन व तिलका नाकतुन। हाजा जमलुन, हाजा मुजक्कर के लिए है, मुअन्नस के लिए है? लिल मुजक्कर, ये ऊंट है और वो ऊंटनी है, और वो नाका ऊंटनी। कुरान में भी आया है लफ्ज नाकतुल्लाह, ऊंटनी है। अब आगे चलिए, इसको पढ़िए। हाजिही मुदर्रिसतुन, अब यहां पर मदरसा नहीं है, जुड़ रहा है जो वो मुदर्रिसा जुड़ रहा है। हाजिही मुदर्रिसतुन व तिलका तालिबतुन। हाजिही मुजक्कर के लिए आता है या मुअन्नस के लिए? ये उस्तानी है। लिल मुअन्नस, मुअन्नस के लिए ये उस्तानी है, और वो वतिल का तालिबतुन, और वो तालिबा है, और वो तालिबा है। सही पढ़ना हमको आना चाहिए और उसके बाद हमको तर्जुमा करना आना चाहिए, तरकीब समझ में आना चाहिए। हाजिही मदरसातुन, ये मुब्तदा खबर है। हाजिही मुब्तदा, मदरसा खबर। वतिल का, ये अत्फ है उसी पर, मुब्तदा खबर है। हाजा कल्बुन, क्या पढ़ेंगे इसको? वज़ालिका क़ित्तुन। हाजा मुज़क्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए? किसके लिए है? मुज़क्कर। हाजा मुज़क्कर के लिए है, वाहिद के लिए है, करीब के लिए। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है और वो बिल्ला है। ये कुत्ता है और वो बिल्ला है। अब हम आगे चलते हैं। हाजा बैतुल मुअज्जिनी, मुजाफ मुजाफले है ये। हाजा बैतुल मुअज्जिनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी। हाजा बैतुल मुअज्जिनी, ये मुअज्जिन का घर है। क्या तर्जुमा करेंगे? ये मुअज्जिन का घर है। फिर से, मुअज्जिन किसे कहते हैं? ये मुअज्जिन का घर है, अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। वतिलका हदीक़तुत ताजिरी, और वो ताजिर का बाग है। समझ में आ रहा है तर्जुमा? हाजा बैतुल मुअज्जिनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी। बैतुल मुअज्जिनी और हदीक़तुत ताजिरी क्या तरकीब है? मुजाफ मुजाफले होकर के खबर है। ये मुअज्जिन का घर है और वो ताजिर का बाग है। छोटा सा सबक है ये, इसमें मुकम्मल हो जाएगा। अशिर इलल कलिमातिल आतिया बिस्मी इशारा लिल बईद। अब हमको यहाँ पर इसमें इशारा इस्तेमाल करना है, कहां पर जालिका आएगा और कहां पर तिल का आएगा, ये आप बताएंगे। यहां लिखा है उम्मुन, यहां क्या आएगा? इसमें इशारा जालिका इस्तेमाल करेंगे या तिल का? बताइए, जल्दी बताइए। तिल का। क्यों तिल का?
तिल का क्यों आएगा? तिल का इसलिए आएगा क्योंकि मुअन्नस है ना, इसीलिए तिल का लाएंगे हम यहाँ पर। तिल का उम्मुन, यहाँ क्या आएगा? अबुन के साथ जालिका अबुन, अबुन मुजक्कर है इसीलिए जालिका आएगा, जालिका अबुन। कलम के साथ क्या आएगा? जालिका या तिल का? जालिका कलमुन, वो कलम है। मिलाका के साथ क्या आएगा? तिल का मिलाकतुन, वो चम्मच है। आंख के साथ क्या आएगा? तिल का ऐनुन, जो पेयर में है वो मुअन्नस है। तिल का ऐनुन, वो आंख है। हजर के साथ क्या आएगा? जालिका या तिल का? हल तस्माउनी, जालिका आएगा, जालिका आएगा। हजर मुजक्कर है और इसीलिए जालिका लेकर के आएंगे। जालिका हजरुन, अगर मुजक्कर की तरफ इशारा करना है तो मुजक्कर इसमें इशारा, मुअन्नस की तरफ इशारा करना है तो मुअन्नस इसमें इशारा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये देखें आप, कमीज की तरफ इशारा करना है। किसकी तरफ? किसकी तरफ इशारा करेंगे यहां? कमीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहां किसकी तरफ इशारा करेंगे? कमीज मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है, क्योंकि इसमें आपको कोई मुअन्नस की अलामत नहीं दिख रही है। ज़ालिका कमीसुन, क़िद्रुन मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये मुअन्नस सिमाई है, इसीलिए हम यहाँ तिल का इस्तेमाल करेंगे। तिल का क़िद्रुन, वो हांडी है। नाफिज़तुन मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है, गोलता लगी हुई है। तिल का नाफिज़तुन, नाफिज़ा मतलब क्या होता है? नाफिज़ा मतलब क्या होता है? खिड़की। उसके बाद है बकरा, तिल का बकरतुन, वो गाय है। मकतब मुजक्कर है इसीलिए हम यहाँ पर जालिका लेकर के आएंगे। जालिका मकतबुन, वो डेस्क है, टेबल है, ऑफिस है। नाकतुन मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है, क्योंकि उसमें गोलता लगी हुई है, मुअन्नस है। तिल का नाकतुन, वो क्या है? ऊँटनी है। मुहंदिस मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुहंदिस मुजक्कर है, क्या है? मुजक्कर है। ज़ालिका मुहंदिसुन, वो क्या है? इंजीनियर है। मुअज्जिन मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है। मुअज्जिन अजान देने वाला, ना कि अजान देने वाली। अजान देने वाला, इसलिए हम यहाँ जालिका लेकर के आएंगे, जालिका का इसमें इशारा करेंगे। अशिर, अशिर इलल मुमर्रिज़ा, तिल का मुमर्रिज़तुन, मुमर्रिज़ा का मतलब क्या होता है? नर्स, वो नर्स है। शरीर मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। ज़ालिका शरीरुन, वो क्या है? शरीर का मतलब क्या होता है? पलंग, वो पलंग है। हदीक़तुन मुजक्कर है या मुअन्नस है? हदीक़तुन मुजक्कर है या मुअन्नस? गोलता अगर आ जाती है, गोलता अगर है तो वो मुअन्नस है। तिल का हदीक़तुन। तालिबतुन मुजक्कर है या मुअन्नस? गोलता अगर आती है तो वो मुअन्नस है, मुअन्नस है। तिल का तालिबतुन। जमल मुजक्कर है या मुअन्नस है? ज़ालिका मुजक्कर है। ज़ालिका जमलुन, वो ऊंट है। तिल का बत्तुन, वो बत्तख है।
دیکھیے یہاں پر پورا بنا ہوا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ الکلمات الجدیدہ میں آ جائیے الممرضہ۔ الممرضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک نوٹ نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی آپ نوٹ کر لیں۔ نرس ہوتا ہے، اور مؤذن کا مطلب ہوتا ہے، مؤذن ہی استعمال ہوتا ہے، اور واضح انداز میں اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن۔ اذان دینے والا، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن۔ حدیقہ، ما معنی حدیقہ؟ الحدیقۃ مطلب باغ، باغ، الحدیقہ باغ۔ الناقۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی، الناقۃ اونٹنی۔ البتۃ بطخ، اونٹنی، البتۃ بطخ۔ البیضۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ انڈا، البیضۃ انڈا۔ تو یہ معنی آپ کے سامنے ہے یہاں پر۔ اسماء الاشارۃ للقریب کیا ہے؟ اس میں اشارہ قریب، قریب کے لیے حاذا ہے اور حاذی ہے۔ حاذا مذکر کے لیے ہے، حاذی مؤنث کے لیے ہے۔ دور کے لیے ذالکا ہے مذکر کے لیے، اور تلکا ہے مؤنث کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم نیا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے۔